Students, welcome to the another session of information and technology. Now you must be wondering that why we have started database a new chapter all of a sudden. The thing is that we were doing the spreadsheet and we were having the practical demonstration of different topic, and due to some technical issues screen recording software is not working at all in my laptop. I tried up to 11:20 when I thought no, it's very late. So then I thought let's not waste our time and do something instead of doing nothing. So this is a kind of you will get a kind of change from a very continuous same kind of topic. At the same time, we will have the utilization of the period to just introduce the chapter that we are going to start after this topic. We have many topic in spreadsheet, but after covering the entire chapter of spreadsheet, we'll get into the database. So I thought let's not just waste and just start a new topic today itself. In the next class, we will continue in spreadsheet only. No need to get worried about that. So this is the scanned copy of your chapter only for first top few pages, up to which I'm just going to explain today. It's not like the entire chapter is not scanned. When we will have a proper beginning of the chapter, we will give you the entire PDF of the chapter, but it's not like we will repeat the same topic that we are covering today. This is something that I want to mention over here. This is the introduction class that we will skip when we will start the chapter properly after covering the spreadsheet. So when we talk about database, this is something that you have learned in class 7 also. If I'm not wrong, in class 8 also to some extent. आपने MS Access के बारे में पढ़ा है. That how database is very helpful in our day-to-day life. This is something that helps to store data in bulk volume. This is something that helps to represent the data in something meaningful form that is useful for many individual, many organization. So if you have a definition of database, you can say it is a container in which data gets stored in an organized structure. Okay, it is a container in which data gets stored in an organized structure in bulk volume. And this is the flow chart that you can see here, that data, information and knowledge. Now over here, when we just go through this particular flow chart, you will find that in the very beginning, in the early stage, anything is data, anything is raw facts and figure, anything is in raw material, something which is very raw in nature, means which is not formalized, which is completely unorganized kind of data. It all depends on us that how we are putting instruction into that to keep it organized. Now after processing the data, we are getting an output that is called information, and that information is something meaningful, something useful, and that is a set of organized data. And after processing of information, something that we receive, something that we utilize, something that we apply in our day-to-day life, in our work life, in professional life, that becomes our knowledge. So from data we go to information, then we go to knowledge, and it is a step-by-step process. So there is a long paragraph, 2 to 3 paragraphs, or if I will not, I think it is a kind of 2 pages of introduction only, that how manual system is very complicated when we talk about database management system, because it is very difficult to maintain the data, it is very difficult to update the data in manual system. Like we have registers where we have to enter the data one by one, any corrections, then we have to manage, update the data in all different registers for a different individual. So all these situations are mentioned in these 2 pages कि किस तरीके से हमारा जो ये रिवॉल्यूशन आया है इस इंडस्ट्री में, इस डेटा बेस के फील्ड में, वो डेटाबेस उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अलग अलग केस स्टडीज़ दिए गए हैं. लाइक देयर इज़ अ केस स्टडी दैट लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन वेयर ए कॉलेज हैव 100 of students. It stores relevant information like this. For example, there could be a file for each semester within a department. Now listen, this is how if we are going with the manual process, कि एक डिपार्टमेंट में अलग अलग सेमेस्टर के लिए अलग अलग फाइल होगी.
कितने सारे डिपार्टमेंट्स होंगे कॉलेज में, और हर सेमेस्टर में हर डिपार्टमेंट में 50 स्टूडेंट्स है, अगर 10 डिपार्टमेंट हो तो 500 स्टूडेंट्स. सो बेसिकली द सिनारियो हैज़ बीन गिवन to understand the need of database, to understand the importance of database in our day-to-day life, कि किस तरीके से एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, एक डेटाबेस का पैकेज, एक डेटाबेस का प्लेटफॉर्म हमें हेल्प करता है हमारी काम को आसानी से करने में, चाहे वो डेटा स्टोरेज का हो, चाहे वो डेटा अपडेशन का हो, चाहे वो डेटा मैनेजमेंट का हो, हर तरह के सिचुएशन को. नाउ we have an introduction about the DBMS or database management system. This is something that we have learned in class 7, in class 8 also. There are two terms that you have learned, that is DBMS and RDBMS, database management system, and one is relational database management system. Before I just talk about all this paragraph, you can see there is a diagram over here, this one, that how this evolution, this ट्रांजिशन हैज़ बीन टू डिफरेंट स्टेजेस, कि किस तरीके से ये DBMS अलग अलग स्टेज में आता गया और हम उसको अपने पर्पस के हिसाब से यूज़ करते गए. जैसे डेटा इंडिपेंडेंस, जब भी हम लोग डेटा DBMS के एवोल्यूशन में अलग अलग फेजेस के, अलग अलग स्टेजेस की बात करती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टार्टिंग स्टेज है दैट इज़ इंडिपेंडेंस. डेटा की अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, डेटा की अपनी एक यूनिकनेस होनी चाहिए, तभी वो डेटा काम की होगी. ऑप्टिमाइजेशन, जब हमारे पास बल्क में डेटा हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे डेटा हमारी ज़रूरत के हिसाब से हो. डेटा को ऑप्टिमाइज करना, डेटा को फ़िल्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, जैसा कि आप गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो आप देखते हो कि आपके दिए गए कीवर्ड के हिसाब से गूगल सर्च करता है, बट स्टिल वो फर्स्ट पेज में फ़िल्टर किया हुआ रिजल्ट को दिखता है, जो कि हो सकता है आपके डिमांड के हिसाब से हो. आप यूट्यूब में कोई वीडियो सर्च करते हो, आप एक छोटा सा वर्ड टाइप करते हो और आपको एक उस वर्ड के बिना कंप्लीट टाइप किए हुए आपको बहुत सारे सजेशंस दिखने लगते हैं कि आप क्या टाइप करना चाह रहे हो. तो ये ऑप्टिमाइजेशन है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, दैट इज़ SEO. वो आपके इंटरेस्ट को पकड़ता है और उसके हिसाब से वो डेटा को डिस्प्ले करता है. देन डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा जब हमारे पास डेटा की आइडेंटिटी हो गई, डेटा फिल्टर्ड हो गया, तो डेटा को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है, किसके साथ, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ. एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब अगर कोई एक डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उस डेटा को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं, उस डेटा के स्ट्रक्चर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डेटा के साइज़ को बढ़ा सकते हैं कि नहीं, डेटा के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं कि नहीं, डेटा के उसके मैग्नीट्यूड को, उसके इम्पैक्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं. फेडरेशन इज़ बेसिकली द एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम डिफरेंट पीपल इन ए सेम ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई डेटा है एक जगह पर, अगर वो एक रिसर्च सेंटर है, अगर वहाँ पर 10 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो वो डेटा सारे 10 साइंटिस्ट के लिए अवेलेबल होना चाहिए. उसके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कहीं पर भी काम, कोई भी उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाए. और दैट इज़ ओनली कॉल्ड इंटीग्रेशन, कि डेटा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है. कोई भी एक प्रोजेक्ट चल रहा हो सेंट्रल गवर्नमेंट का मान लीजिए, तो वो गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बार बार डेटा कलेक्ट नहीं करती है. उसने एक सर्वे किया, एक सर्वे में उसने जो भी डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, चाहे वो BPL का कलेक्शन हो, चाहे वो आधार कार्ड से रिलेटेड डेटा हो या पैन कार्ड से हो, उनका एक डेटाबेस तैयार हो गया और उसी डेटा को वो अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अपने हिसाब से इंटीग्रेट करेगी, डेटा को अलग अलग जगह पर यूज़ करेगी. सो इंटीग्रेशन इज़ बेसिकली द यूज़ ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा इन ए डिफरेंट एप्लीकेशन, इन ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म. तो ये अलग अलग स्टेजेस में काम करती है इस तरीके से हमारा DBMS का इवोल्यूशन. इसमें बहुत सारे पैराग्राफ में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, जिसको मैं आपको बिल्कुल भी समझाने नहीं जा रहा हूँ. बस मैं इतना कह दूँगा DBMS के बारे में कि DBMS और RDBMS में डिफरेंट क्या है, कि DBMS में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता टेबल के बीच में. ठीक है, RDBMS में टेबल के बीच में रिलेशन हो सकता है. DBMS एक फ्लैट फाइल डेटाबेस है, मतलब उसमें मल्टीपल टेबल्स के बीच में कनेक्टिविटी नहीं कर सकते. जैसे कि आपका स्प्रेडशीट का पैकेज हो गया, ठीक है, जैसे आपका एक्सेल या कैल्क, ये सारी चीज़ें हो गई DBMS. जब हम लोग RDBMS की बात करते हैं, जब डेटाबेस रिलेटेड हो एक दूसरे के साथ, इंटरकनेक्टेड हो, जब एक डेटाबेस में कोई चेंजेस हो रहा है तो वो दूसरे डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो RDBMS is something very important in our day-to-day life, nowadays especially, and that is the
purpose that we are going, that is the topic that we are going to discuss in the continuation. तो RDBMS के बेसिक एप्लीकेशंस जैसे कि आपका MS एक्सेस हो गया, ओपन ऑफिस का बेस हो गया, फिर आपका आ जाता है SQL। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर क्लास 10 में हम लोग जो भी प्रैक्टिकल करेंगे वो SQL पे करेंगे, ठीक है। SQL का कमांड्स वगैरह लिख के हम लोग डेटाबेस में काम करना स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो मैं कह रहा था कि DBMS इज़ बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट टूल, एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म जहाँ डेटा मेंटेन्ड होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर डेटा को ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ तभी हम लोग कर पाते हैं जब उसमें एक आर टर्म यानी RDBMS ऐड हो जाता है। बट आपके बुक में हर जगह DBMS को ही RDBMS के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए आप इसको RDBMS ही कहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देखिए DBMS, लास्ट पॉइंट देखिए, DBMS इज़ यूज टू बिल्ड द डेटाबेस एंड ऑल्सो टू मैनेज द डेटाबेस इन डिफरेंट वे, लाइक एक नया डेटा ऐड करना हो, कोई डेटा चेंज करना हो, कोई डेटा डिलीट करना हो, डेटा को शॉर्ट करना हो, डेटा को एक्सट्रैक्ट यानी रिसीव करना हो, डेटा को मैनिपुलेट करना हो, डेटा को रिपोर्ट्स जनरेट करना हो, कैलकुलेशन करना हो, ये सारी चीज़ें हम लोग कर पाते हैं किसी भी RDBMS या DBMS के पैकेज में। अब इसके 2-3 ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम लोग क्लास 7 में भी देख चुके हैं, 8 में भी देख चुके हैं। अगर आपको रिकॉल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका जो 3 टॉपिक हम लोगों ने मेजर देखा था कि डेटाबेस के 3 टॉप ऑब्जेक्ट हैं, दैट इज़ फॉर्म्स, इट इज़ यूज टू इंटर ए डेटा, अपडेट ए डेटा, वन इज़ क्वेरी विच इज़ यूज टू रिट्रीव और access data, and then one is report which is used to represent the data in a organized structure. So forms, query and report, these are 3 different objects. I don't know whether we have it in the next few topic or not. If we will have, we will discuss, otherwise we will skip, ठीक है। Now there is a notes over here, who governs the database management system in an organization. In any organization, whether it is a MNC, it is IT company, if there is a term or purpose of having a database, then there will be a DBA. That person is called DBA or database administrator. He is responsible to manage all technical aspect of a database, everything. Now, after all these features and introduction, we have the different benefits of DBMS. That is something again very friendly and very easy to understand, but still just by going through the topic we will try to understand each and every topic. Reduction in data redundancy, this is something that has happened only after the introduction of database. जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि MS Excel में आप किसी पर्टिकुलर रो कॉलम में आप पर्पसली एक ही वैल्यू को बार बार डालोगे तो आपको किसी तरह का कोई एरर नहीं देगा, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप एक डेटाबेस के पैकेज में, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो SQL हो, चाहे वो एक्सेस हो, चाहे वो बेस हो, हर प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हो। उसका भी प्रावधान है, उसके लिए भी फीचर्स हैं जिसको आप एक बार यूज़ कर दो तो आप उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू चाहकर इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, जिससे होगा क्या कि डेटा आपका डुप्लीकेट नहीं होगा, रिपीटेटिव डेटा नहीं आएगा, डेटा का वॉल्यूम, अननेसेसरी डेटाबेस का वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। रिडक्शन इन डेटा इनकन्सिस्टेंसी, होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक एक्सेल सीट है जो मैंने बनाया है क्लास 10A के लिए, ठीक है। उस पर्टिकुलर डेटाबेस में, उस पर्टिकुलर एक्सेल सीट में मैंने बच्चों का नाम, रोल नंबर और उनका मार्क्स मैंने स्टोर किया हुआ है। अब किसी कारण से अब उसमें कोई एक बच्चा है जिसका नाम उसने चेंज किया, मान लीजिए मिड सेशन में उसने बताया किसी एक सब्जेक्ट टीचर को, या उसने अपने क्लास टीचर को बताया। क्लास टीचर ने सारे सब्जेक्ट टीचर्स को इन्फॉर्म कर दिया इसका नाम XYZ से ABC करना है। अब गलती से उस केस में करना क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट टीचर को अपने अपने डेटाबेस या अपने अपने एक्सेल सीट में उसका नाम चेंज करना होगा। अगर गलती से किसी एक सब्जेक्ट टीचर से छूट गया तो जब वो रिपोर्ट जनरेट होगा तब वहाँ पर दिक्कत होगी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर वही डेटाबेस पे काम हो रहा होगा, अगर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस से सारे सब्जेक्ट टीचर्स कनेक्टेड होंगे तो एक जगह करेक्शन होगा, उससे कारण सारे सब्जेक्ट टीचर्स के डेटा में ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाएगा। So that is called consistency. Data consistency is basically the data is same everywhere, wherever it is, from source to destination. But when there is a manipulation, there is a changes in data, then it is inconsistent data. That is data inconsistency. Sharing of data.
डेटाबेस है तो डेटा शेयर होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अलग अलग सिस्टम में, जिसको अलग अलग पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. दैट इज़ वेरी इजी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. देन वी हैव इन्फोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड. इन्फोर्समेंट मतलब किसी चीज़ को लागू करना. किसको लागू करना? डेटा स्टैंडर्ड को लागू करना. किस तरह का स्टैंडर्ड को लागू करना? जैसे मान लो आप एक डेटाबेस बना रहे हो और आपने एक फॉर्मेट डिफाइन कर दिया है. आप उसमें एक जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसमें देखते हो कि डेट ऑफ बर्थ का एक फॉर्मेट डिफाइंड है. द डेट ऑफ बर्थ शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ DDMMYY. द कॉन्टैक्ट नंबर शुड नॉट हैव एनी जीरो इन द सफिक्स, or sorry, prefix. The passport size of the photograph of the candidate should not exceed 50 KB per candidate. तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ताकि आपका डेटाबेस जो क्रिएट हो रहा है, आप स्टूडेंट्स का, उस एग्ज़ाम को फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट का जो भी डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, वो एक डेटा स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, वो यूनिफॉर्म डेटा सेव कर रहा है. किसी का भी फ़ोटो साइज़ 50+ KB 50 KB के ऊपर नहीं होगा. कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ अलग अलग तरीके से लिख नहीं पाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वो DDMMYY में होना चाहिए. हाइफन होगा या डैश होगा या कुछ नहीं होगा, ये भी स्पेसिफाइड है. इससे क्या होती है, डेटा यूनिफॉर्म सेव होता है सिस्टम में. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, दैट there is some sort of protocol, some sort of set of guideline that can be easily implemented because of the database, but in spreadsheet and other application this features is not available. Then we have ensure data security. This is something all about the safety of data, that the unauthorized person do not access into the data. In absence of the actual person, the person who is not responsible to access the data, they can have an eye or catch or get his hand onto it, and they can manipulate the data for their personal purpose or professional benefits. It all depends on the situation. तो डेटा सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास क्या क्या फीचर्स है ये लिखा गया है. डेटा इंटीग्रिटी इज़ बेसिकली द वैलिडेशन ऑफ डेटा. ठीक है, मतलब जैसे कि आपका मान लीजिए एक सिचुएशन है जिसमें आप जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की ही बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इन्फोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड में जब भी हम लोग कोई कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं तो कहा जाता है कि 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर कोई गलती से 11 डिजिट या 9 डिजिट दे रहा है तो उसमें एक एरर मैसेज करना चाहिए. तो दिस इज़ कॉल्ड वैलिडेशन. जब डेटा एंटर्ड डेटा को आप वैलिडेट कर रहे हो अपने एक्सपेक्टेशन के साथ, तो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेटा इंटीग्रिटी. सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी सिचुएशन में. जैसे आप फोटोग्राफ स्टोर कर रहे हो तो उसका साइज़ हो गया. ठीक है, जैसे कोई UKG का फॉर्म स्कूल में फिलअप किया जाता है, उसमें हम लोग एक डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ रखते हैं 4.5 ईयर से 5.5 ईयर. तो उस हिसाब से हम लोग एक एज कैलकुलेट करते हैं, कट ऑफ डेट रख लिया जाता है कि इस एज से लेकर इस एज के बीच में जो भी बॉर्न बेबीज़ हैं उनका ही हम लोग एडमिशन लेंगे स्कूल में. अगर उससे एक दिन पहले का हो या एक दिन बाद का हो तो वो सिस्टम उस डेट को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं. तो वो किस लिए नहीं करेगा? क्योंकि उसमें वैलिडेशन नहीं कर पाएगा, वो वैलिडेशन फेल हो जाएगा. और जब वैलिडेशन फेल हो जाएगा तो वो डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा. तो डेटा इंटीग्रिटी इज़ वेरी इजी एंड वेरी पॉसिबल इन बिकॉज ऑफ डेटाबेस पैकेज. देन वी हैव इंटरैक्टिव इंटरफेस. जब भी हम लोग इंटरफेस की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम चैनल, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रंट एंड दैट इज़ विजिबल टू द यूज़र. वो यूज़र को किस तरीके से दिख रहा है, यूज़र उसमें किस तरीके से काम कर रहा है. तो जब इंटरैक्टिव इंटरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी यूज़र, चाहे वो नोविस यूज़र हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल यूज़र हो, चाहे वो बहुत ही अच्छा एवरेज यूज़र हो, सभी को आसानी से काम करने में सहूलियत मिले. कोई सिस्टम को समझने में किसी को ज़्यादा समय ना लगे, जो आसानी से यूज टू हो जाए, चीज़ों से फेमिलियर हो जाए. तो ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब आपका इंटरफेस प्रॉपर हो, जब आपका इंटरफेस सही तरीके से डिज़ाइन किया हुआ हो और एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत ना पड़े उसको सिखाने के लिए काम. तो इंटरफेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सॉफ्टवेयर. जब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो और उसका इंटरफेस बहुत ही इंटरैक्टिव होता है तो विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग और डेडिकेटेड ट्रेनिंग यू कैन ईजिली वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म और एनी एप्लीकेशन. क्योंकि आपका इंटरफेस आपके लिए ईजी टू यूज़ हो जा रहा है, ईजी टू अंडरस्टैंड. द मेन्यू बार्स आर इजीली रीडेबल एंड दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एनी इश्यूज़. तो इस तरीके से आप जब इंटरफेस की बात कर रहे हो, आप एक फ्रंट एंड की बात कर रहे हो, आप डिज़ाइन की बात कर रहे हो, एक विंडो की बात कर रहे हो, और वो विंडो जो सारे लोग एक्सेस करेंगे, तो क्यों ना उस विंडो को हम लोग फ्रेंडली बनाएं, इंटरैक्टिव बनाएं, यूज़र फ्रेंडली बनाएं. तो इसी तरह से DBMS के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सारे में यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है, जिससे कोई भी लोग आसानी से उसमें काम कर पाते हैं. तो
इतना सारा चीज़ हम लोगों ने आज के लिए सेशन में देखा। बस इतना ही मैं याद रखना चाहूँगा, इसके आगे का टॉपिक मैं और अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ ऑलरेडी 20 मिनट। ठीक है, तो क्या एक काम करते हैं, कुछ इसी से वन वर्ड आंसर मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, इससे 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 नहीं देता। ठीक है, ओके, आई विल गिव यू और वी विल गिव यू द वन वर्ड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द स्प्रेडशीट दैट वी द टॉपिक्स विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एक्सेल में जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं स्प्रेडशीट में टॉपिक, उसी में से कुछ वन वर्ड टाइप का आंसर आप लोग आपको अभी क्लास ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। उसका आंसर आप लोग शेयर करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे, फिर आंसर शेयर करेंगे। इस तरीके से हम लोग एक 5-6 क्वेश्चंस का एक सेशन क्वेश्चन आयर सेशन करते हैं। देन वी विल जस्ट फाइंड अप द क्लास। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर द डे। आज के लिए आपका कोई भी होमवर्क नहीं है। ठीक है, दिस देयर इज़ नो होमवर्क फॉर द डे, यू कैन जस्ट हैव फन। Okay, thank you everyone, and stay home, stay safe.